Hello student, today we discuss inbreeding and outbreeding. Breeding this word मतलब breed करना, breed करवाना, प्रजनन करवाना. Breeding means प्रजनन. Breeding in the domesticated animals. Domesticated means पालतू. Domesticated animals and cultivated crop, agricultural crop, began with the changed habit of human being from hunter stage to agricultural settlements. इसका मतलब हुआ कि ह्यूमन बीइंग ने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कब स्टार्ट किए डोमेस्टिक एनिमल्स में और कल्टिवेटेड एग्रीकल्चरल क्रॉप में कब, जबकि अनसिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग जब पहले हंटर स्टेज में था. हंटर्स मतलब अपना हंटिंग करके शिकार करके अपना पेट भरता था. बाद में जब वो सिविलाइज्ड हुआ तो फिर उसका एग्रीकल्चरल करने लगा, खेती करने लगा और उसका एग्रीकल्चरल सेटलमेंट हुआ, गांव बसने लगे. सो दैट टाइम ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स एंड ए कंटिन्यूअस अटेम्प्ट हैज बीन मेड सिंस देन टू ऑब्टेन क्वालिटी एनिमल्स with the intention of obtaining better egg production, milk production, meat production, and to obtain better quality of plants for getting increased yield. Yield माने पैदावार, agricultural production, that is called increased yield, disease resistance varieties and early maturity varieties. So ये breeding experiments करके best quality of domesticated animals they have started collecting, because for egg production, milk production, meat production, and in agricultural they obtained better quality of plants. Better quality of plant means more disease resistant varieties, more yield giving varieties, जो अर्ली मैच्योर होती हैं और जल्दी पैदावार देती है वो वेराइटीज. That all are under breeding experiments. So breeding in the domesticated animals and cultivated crop begins with the changed habit of human beings from hunter stage to agricultural settlements. A continuous attempt has been made since then to obtain quality animals with the intention of obtaining better egg production, milk production, meat production, and to obtain better quality plants for getting increased yield, disease resistance and early maturity varieties. So this is introductory paragraph. Now in breeding and उसके पहले ये in लगाए. In breeding मतलब breeding in close relation, in a same family अगर breeding होता है तो that is inbreeding, which refers to production of offspring through mating between closely related parents. Closely related parents मतलब एक फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे हम समझ सकते हैं कि 4-5 जनरेशन तो हम जानते हैं, पर दादा, पर दादा, दादा, चाचा, ये सब रिलेटेड फैमिली एक मेंबर फैमिली होती है. इनमें अगर इनब्रीडिंग होता है तो दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग. इनमें अगर ब्रीडिंग होता है दैट इज इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग रिजल्ट्स in an increase of homozygosity. Homozygosity means दोनों सेम टाइप ऑफ जीन्स, सेम जीन्स मतलब होमोजाइगस, रेसेसिव और डोमिनेंट, दैट इज होमोजाइगोसिटी. पार्थेनोजेनेसिस इन एनिमल्स एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स आर द मोस्ट एक्सट्रीम टाइप ऑफ इनब्रीडिंग. पार्थेनोजेनेसिस को पता होगा, पार्थेनोजेनेसिस मतलब जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन मीन देयर इज ए ova and sperm, they get fertilized and form zygote. That process is called fertilization. Parthenogenesis में there is no involvement of sperm, सिर्फ फीमेल गमेट होता है और फीमेल गमेट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो देन प्रोड्यूसेस द एनिमल. सो पार्थेनोजेनेसिस में जो एम्ब्रियो बनता है या ऑफस्प्रिंग बनता है दैट इज ए क्लोन और एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ मदर. दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस. इन सम एनिमल्स देयर इज ए पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस of reproduction.
Parthenogenesis in animals and self-fertilization in plants are most extreme types of inbreeding. Parthenogenesis and self-fertilization in plants, these are the most extreme types of inbreeding. Inbreeding in animals and plants decline in quality, vigor and yield. इनब्रीडिंग से क्या होता है, अगर क्लोज रिलेशन में ब्रीडिंग करते हैं, सेम फैमिली में या सेम फैमिली ट्री में दो इंडिविजुअल्स में ब्रीडिंग अगर होता है तो क्या होगा, तो ऑफस्प्रिंग की क्वालिटी दिन खराब होते रहेगी एंड डिक्लाइन इन क्वालिटी, जनरेशन टू जनरेशन क्वालिटी ऑफ दैट जनरेशन ऑफस्प्रिंग विल बी डिक्लाइन. व्हाई? बिकॉज सेम जीन्स आते रहेंगे और उसमें वेरिएशंस नहीं रहेगा, सेम जीन्स का एक्यूमुलेशन होगा, सेम जीन्स का एक्यूमुलेशन, सो होमोजेनिसिटी बढ़ेगी, रिसेसिव और डोमिनेंट होमोजेनिसिटी बढ़ेगी, सो डिक्लाइन इन क्वालिटी. विगर मीन्स सुपीरियरिटी, वेरिएशन, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, इंटेलिजेंस, क्वोशंट, दैट इज कॉल्ड विगर. विगर मीन्स सुपीरियरिटी, दैट इज ऑल्सो डिक्लाइन. यील्ड इन एग्रीकल्चरल क्रॉप में यील्ड मतलब पैदावार इज डिक्लाइन. फाइनली रिजल्टेड इनटू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इससे होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बिकॉज इसमें वेरिएशन नहीं होगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होने से बेटर ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनेंगे, इवोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा. सो after 4-5 generations it results in breeding depression. After few inbreeding generations degenerative changes increases, ultimately leading to the non-viable seeds in plant and infertility in animals. अगर ये 2-4 जनरेशन तक कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग रहेगा, सेम फैमिली में इनब्रीड होते रहेंगे, तो फिर अगर प्लांट्स है तो उसमें सीड्स नहीं बराबर पैदा होंगे और सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे, नॉन वायबल सीड्स इन प्लांट, इनफर्टिलिटी इन एनिमल्स में फर्टिलिटी नहीं रहेगी. इन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इफ वी इन ब्रीड इन क्लोज रिलेटिव्स देन इनफर्टिलिटी डे बाय डे डिक्लाइंस. सो दिस इज द इनब्रीडिंग. द फॉलोइंग आर द जेनेटिक डिफेक्ट्स effects due to inbreeding. First is pure line breeds can be produced. So ये एक important चीज है, pure line breeds can be produced by inbreeding. अब इसको हम एक फायदा बोल सकते हैं या फिर प्लस पॉइंट, मेरिट बोल सकते हैं. pure line breed can be produced मतलब कुछ रेसेस, कुछ स्पेसीज ऐसी होती है जो प्योर लाइन होती है, जिनमें बेस्ट क्वालिटी जीन्स होती है, और वो जीन्स हमें दूसरे के साथ ब्रीड करके वेस्ट नहीं करना है, और वो जीन्स का जो बंच है या फिर वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्योर रेस की, उसको मेंटेन रखना है, उसको तो हम प्योर लाइन ब्रीड करेंगे, मतलब इन ब्रीडिंग करेंगे, सेम इंडिविजुअल्स में इन ब्रीड करेंगे और प्योर लाइन ब्रीड्स को मेंटेन रखेंगे. तो इसमें प्योर लाइन हॉर्सेस होती है, प्योर लाइन डॉग्स होते हैं, प्योर लाइन बफेलोज मिल्क प्रोड्यूसिंग. बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्योर लाइन ब्रीड्स तो प्रोड्यूस कर सकते हैं बट उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म होती रहती है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्लाइन होती है. सो दिस इज प्योर लाइन ब्रीड्स कैन बी प्रोड्यूस. ये एक फायदा इसमें हो सकता है इन ब्रीडिंग में, बट दैट इज टू not so very important. Homozygosity of many traits increases. Traits मतलब कैरेक्टर. तो इनब्रीडिंग करने के कारण होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी. होमोजाइगोसिटी बढ़ने से प्रॉब्लम्स होते रहेंगे. इट इज बिकॉज क्लोज रिलेटिव्स हैव सिमिलर जीन्स. अगर ब्रदर सिस्टर है या फिर चाचा या फिर क्लोज रिलेटिव्स ऑफ 2-3-4 जनरेशन तक, तो जीन सेम रहेंगे और सेम जीन्स का एक्यूमुलेशन होते रहेगा, तो
कैरेक्टर्स जो है, ट्रेट्स जो है, डिसीजेस जो है, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, इसका होमोजाइगस कंडीशन में आते रहेंगे। होमोजाइगस कंडीशन में आते रहेंगे तो ये डिसीज ज़्यादातर होंगे, बिकॉज होमोजाइगसिटी हो जाएगी ना, रेसेसिव और डोमिनेंट। डोमिनेंट होमोजाइगसिटी होगी तो डिसीज होगा। रेसेसिव ट्रेट्स में भी, रेसेसिव ट्रेट्स गेट चांसेस टू अपीयर फिनोटाइपिकली। रेसेसिव होमोजाइगसिटी होगी तो भी प्रॉब्लम होगा। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स। होमोजाइगसिटी इज इंक्रीजेस। विगर means superiority, superior characteristics, strength, capabilities, that is vigor. Yield means production, growth, health, height, that is growth. Fertility means reproductive capabilities, fertility. Resistance, that is regarded with the immune system. Physiological activities, metabolism, this all reduce. Means that individual ultimately is not healthy and is not fit for survival. Day by day he is not fit for survival, and that's why lethality increase. Lethality means because of accumulation of dangerous characters, dangerous gene. Lethality means cause to death. Lethality means cause to death. जानलेवा characteristics they accumulate, and these are the drawbacks. Only one this merit we can say, pure line breed can be produced. Assortative mating. In the sexually reproducing organism, the most common inbreeding system, in that those who have common parents, like brother and sister, common parent के offspring brother and sister. This type of mating is called full sib mating and produces an inbreeding coefficient 25% in first generation of breeding. This rate is reduced in succeeding generation. Within 8 to 10 generation, full sib mating can produce an inbreeding coefficient up to 90%. इसका मतलब assortative mating में क्या हुआ कि अगर हम क्लोज फैमिली रिलेशन में अगर मैरिज करते हैं, इन ह्यूमन बीइंग और इन अदर प्लांट ऑल्सो और इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, अगर हम क्लोज रिलेशन में ब्रीडिंग करवाते हैं तो पहले ही जनरेशन में 25% इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट मतलब डिप्रेशन आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द होमोजाइगसिटी. सिमिलर जीन्स एक जगह आने से 25% पहले ही ऑफ जनरेशन में इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट आ जाएगा. फिर अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं इनब्रीडिंग की तो 8-9 जनरेशन तक ये डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन 90% तक पहुंच जाएगा, एंड देन दैट रेस, दैट फैमिली will not survive, it will diminish. That race, entire community can be diminished. Then next is a line breeding. It is a special type of inbreeding used with the intention of obtaining and maintaining high genetic relationship to desired ancestor. Figure is showing a pedigree in which close line breeding of B has been practiced with the result that A possesses maximum B genes. Now here line breeding मतलब एक कोई रेस है, एक कोई इंडिविजुअल है या फिर एक कोई एनिमल का ग्रुप है जिसमें बेस्ट क्वालिटी जीन्स है, प्योर रेस है, प्योर रेस. तो प्योर रेस में जो बेस्ट जीन्स है उसे हमें प्रोपोगेट करना है, उसे मेंटेन करना है, उसको बढ़ाना है, तो हम लाइन ब्रीडिंग करेंगे. लाइन ब्रीडिंग मतलब इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इनब्रीडिंग यूज्ड विथ इंटेंशन ऑफ obtaining and maintaining high genetic relationship to a desired ancestor. अब ये फिगर है, ई इंडिविजुअल है एक और ये दूसरा बी. एक इंडिविजुअल है उसमें ये बी जीन्स का बंच है, बी जीन्स, और ये एक इंडिविजुअल है इसमें ये जीन्स है ई जीन्स.
ये B genes are pure genes. Suppose B genes are pure genes and we have to maintain these B genes. इसको हम बचाना है या इसको बढ़ाना है. एवरी जनरेशन में B जीन्स की क्वालिटी हमें बढ़ाना है. तो ये पहला मेटिंग करवाया है, ये एक इंडिविजुअल और ये दूसरा इंडिविजुअल. ये एक इंडिविजुअल है जिसमें E जीन्स है और ये दूसरा इंडिविजुअल इसमें B जीन्स है. दोनों का मेटिंग होने के बाद ये D ऑफस्प्रिंग हुआ. D ऑफस्प्रिंग. तो D ऑफस्प्रिंग में 50% जीन्स E के आए थे और 50% जीन्स B आए थे. सो 50% E, 50% B. So D contain 50% B genes. Already it possesses 50% B genes. Okay. Now D इंडिविजुअल, ये जो D इंडिविजुअल है इसका अगेन सेम B इंडिविजुअल के साथ मीटिंग करवाया. लाइन ब्रीडिंग में ये सेम इंडिविजुअल से अब ये D ऑफस्प्रिंग जो हुआ है, ये दोनों का क्रॉस करके जो D ऑफस्प्रिंग हुआ है उसका क्रॉस फिर B से करवाया, तो ये C ऑफस्प्रिंग तैयार हुआ. तो C ऑफस्प्रिंग में पहले 25% आए और ये 50% आए, मतलब इसमें अब 75% हुए. 75%. तो C इंडिविजुअल कंटेन B जीन्स, प्योर जीन्स 75%. अगेन C जीन्स के साथ फिर ये B वाले से मीटिंग करवाया, तो A प्रोड्यूस हुआ. A में C के 37% B जीन्स आ गए और ये 50% ये आ गए, तो ये हो गए टोटल 87.5%. सो A इंडिविजुअल कंटेन 87.5% of B genes. This is called pure line breeding. मतलब एक पर्टिकुलर जीनोम, एक पर्टिकुलर रेस के जीनोम्स को बढ़ाना, उसको मेंटेन रखना या उसको प्रोपोगेट करना. That is called line breeding. Here we again read D, मतलब है this D. D possesses 50% B genes and transmit 50% to C. D contain 50% B genes and it transmit 25% to C. B also contributes 50% to C genes. ये B से भी 50% आ गए C में, मतलब ये टोटल हो गए 50% plus 25% 75% B genes. Then C transmit 37.5% to A and B transmit 50%. So 37% plus 50% it becomes 87.5% B genes into A. Practical application of inbreeding. Inbreeding cause homozygosity, जो हमने देखा था, homozygosity of deleterious recessive genes which may result in defective phenotype. जो harmful lethal genes है उसका, that is called deleterious, harmful, lethality, disease causing, syndrome causing, उसकी होमोजाइगोसिटी होने से डोमिनेंट और रिसेसिव कोई भी होमोजाइगोसिटी होने से वो डिसीज उस ऑफस्प्रिंग में होगा, वो डिफेक्ट, मेटाबॉलिक डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट उस ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा, वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देगा. देयरफॉर इन ह्यूमन सोसाइटी द रिलीजियस एथिक्स नॉर्म्स हैव कंडेम्ड एंड बैंड द मैरिज ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. इसलिए ह्यूमन बीइंग में क्लोज रिलेशन में शादी नहीं हो सकती है. कम से कम 8 से 10 जनरेशन तक क्लोज रिलेशन में शादी नहीं हो सकती है. उसके लिए गोत्र सिस्टम होती है इन हिंदुइज्म. गोत्र मीन्स ए फैमिली ट्री. सो टू अवॉइड द accumulation of same genes and to avoid inbreeding, this banned the marriage system. Marriage system in close relative is not permitted. The animal breeders have employed the inbreeding to produce the best races of horses, dogs, bulls, cattle, sheep, etc. Arabian stallion horse pedigree, fine wool producing merino sheep of Spain,
अब जैसे ये अरेबियन स्टैलियन हॉर्स है, अरबी घोड़ा जिसको बोलते हैं, अरबी घोड़ा प्योरेस्ट रेस है, इसका दूसरे के साथ मेटिंग नहीं करवाते हैं, इसका प्योर लाइन मेटिंग करवाते हैं, इनब्रीडिंग करवाते हैं प्योर लाइन, क्योंकि जीनोमिक स्ट्रक्चर उसका मेंटेन रखना है। फाइन वूल प्रोड्यूसिंग मेरिनो शीप, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डॉग्स में भी है, जिसमें एनिमल ब्रीडर्स जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करके इनब्रीडिंग करवा के ये प्योर लाइन मेंटेन करते हैं। So this is about the inbreeding. In next video clip we will discuss outbreeding. Thank you.